فرض کریں آپ ایک اجنبی ملک میں ہیں، موٹر وے کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے عزیز کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ آپ کے پاس صرف چند منٹ ہے۔ آپ کا پہلا فون کس کو جائے گا؟ گھر والوں کو جو سینکڑوں میل دور ہیں، یا ایک ایسے نمبر پر جو شاید آپ کو معلوم ہی نہیں؟ آج کی گفتگو اسی ایک انتخاب کے بارے میں ہے جو زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس کے بارے میں کوئی سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لمحے میں ہماری جو فطری جبلت ہے، یعنی اپنے پیاروں کو پکارنا، شاید وہی ہماری سب سے بڑی غلطی ثابت ہو۔ بالکل، اور آج ہم اسی نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس میسج آف اسلام کا ایک کالم ہے جو جرمنی میں پیش آئے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ ایک نوجوان محمد اقبال کی اچانک موت ہو گئی۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کسی پر انگلی اٹھانا یا الزام لگانا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس المناک واقعے سے ہم سب کیا سیکھ سکتے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی اور خاندان اس ناقابل بیان دکھ سے نہ گزرے۔ جی، اور یہی اس سانحے کو ایک سبق میں بدلنے کی کوشش ہے۔ اس گفتگو کے مرکز میں ایک خاندان ہے جس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک بیوی اور ایک 8 ماہ کی بچی جس نے اپنے والد کو کھو دیا۔ جب ہم اس واقعے کا تجزیہ کریں گے تو ہمیں یہ ہر لمحہ یاد رکھنا ہوگا۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ محمد اقبال، جو محمد اکبر صاحب کے بیٹے تھے، انگلینڈ سے جرمنی کا سفر کر رہے تھے۔ جی، اور وہ خود گاڑی چلا رہے تھے۔ کوپوٹس کے قریب انہوں نے رک کر ایک برگر کھایا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اچھا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم اور تکلیف دہ حصہ ہے۔ ان کے ساتھ جو عزیز موجود تھے، انہوں نے وہی کیا جو شاید ہم میں سے کوئی بھی کرتا۔ انہوں نے گھبراہٹ میں فوراً اپنے رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی فطری، بہت ہی انسانی رد عمل ہے نا؟ جی، یہ فطری ہے، لیکن یہاں ایک نفسیاتی نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے نارملسی بائس کہتے ہیں۔ نارملسی بائس یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا دماغ بحران کے وقت بھی معمول کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اجنبی ملک کی موٹر وے پر ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک غیر معمولی قدم اٹھانا ہے، یعنی کسی اجنبی ایمرجنسی نمبر پر کال کرنی ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارا دماغ اس غیر معمولی صورتحال کو رد کرتا ہے اور معمول کے کام کی طرف بھاگتا ہے، یعنی گھر والوں کو فون کرنا۔ یہ جبلت ایک مانوس ماحول میں تو کام کرتی ہے، لیکن سرحد پار کرتے ہی یہ ایک جان لیوا غلطی بن سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں یہی ہوا، جیسا کہ کالم میں بتایا گیا ہے۔ فون فوری طور پر نہیں اٹھائے گئے، کوئی دفتر میں تھا، کسی کا فون سائلنٹ پر، کوئی مصروف تھا، اور اس دوران وہ قیمتی لمحے ایک ایک سیکنڈ ضائع ہو رہا تھا جو شاید محمد اقبال کی زندگی بچا سکتا تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس وقت وہ دور دراز رشتہ داروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اصل مدد ان سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی۔ بالکل۔ یہ بات تو دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ اب جرمنی کے آٹوبان ایمرجنسی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ نظام ہے کیا اور وہ کتنا مؤثر ہے۔ دیکھیں، جرمنی کا آٹوبان ایمرجنسی سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ ہر 1 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سنتری رنگ کے ایمرجنسی کال باکس لگے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ آپ کو صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور آپ کا رابطہ براہ راست ایمرجنسی سینٹر سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی لوکیشن بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جی بالکل نہیں، سسٹم خود بخود آپ کی جگہ کا تعین کر لیتا ہے اور چند ہی منٹوں میں ایمبولینس اور پولیس آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ نظام بنایا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو مقامی زبان یا جگہ سے ناواقف ہوں۔ 1 منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مکمل، خودکار اور مؤثر نظام ان کے دسترس میں تھا، لیکن صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہ کر سکے؟ جی، یہ تو ناقابل یقین حد تک افسوسناک ہے۔ یہی اس سانحے کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ علم اور عمل کے درمیان ایک بہت بڑی خالج ہے۔ ایک طرف ایک جدید ترین ٹیکنالوجی تھی جو مدد کے لیے تیار تھی، اور دوسری طرف ایک انسان تھا جو گھبراہٹ میں اپنے پرانے طریقوں پر انحصار کر رہا تھا۔ تو یہ تو نظام کی بات ہوئی، لیکن اس نظام کو استعمال نہ کرنے کے طبی نتائج کتنے سنگین تھے؟ رپورٹ کے مطابق مسئلہ صرف چند منٹوں کا تھا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ سانس کی نالی میں پیدا ہونے والا مسئلہ تھا، جسے طبی زبان میں
लेरिंजल एडिमा कहा जा सकता है। ये किसी शदीद एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। अच्छा। ऐसी सूरत-ए-हाल में हर गुजरता सेकंड अहम होता है। अगर इब्तिदाई चंद मिनट में तिब्बी इमदाद मिल जाए, जैसे एक एड्रेनालिन इंजेक्शन, तो जान बचने के इम्कानात बहुत रोशन होते हैं। और यहाँ वक्त का फर्क देखें। कॉलम के मुताबिक मरहूम के वालिद मोहम्मद अकबर साहब को जाए वकुआ पर पहुंचने में 3 घंटे लगे। 3 घंटे, जबकि जर्मनी में इमरजेंसी एम्बुलेंस का औसत रिस्पांस टाइम 8 से 15 मिनट के दरमियान है। 8 से 15 मिनट? जी, जरा इस फर्क का तसव्वुर करें। 3 घंटे और 15 मिनट, ये फर्क, ये जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इस खानदान पर उस दौरान क्या गुजरी होगी जब वो बेबसी से मदद के मुंतजिर थे। जी बिल्कुल, ये हमें इस सानही के इंसानी पहलू की तरफ वापस लाता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक खानदान, एक बेवा, एक 8 माह की बच्ची, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वाकई। और इन ज़ाती तफसीलात का जिक्र इसलिए बार बार ज़रूरी है ताकि ये बात सिर्फ एक थ्योरी या एक केस स्टडी ना लगे। ये एक हकीकी खानदान का दायमी दुख है। वालदैन के मुताबिक मोहम्मद इकबाल एक बहुत खिदमतगुजार और दीनदार नौजवान थे। वो उम्रा पर जाने से पहले अपने वालिदैन से मिलने आए थे। जी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ये वाकई बहुत भारी है, लेकिन जैसा कि हमने तय किया था, इस गुफ्तगू का मकसद इस दुख से सबक हासिल करना है। तो आइए उन ठोस और अमली नुकात पर बात करते हैं जो इस कॉलम और वाक़े से सामने आते हैं। जी, ये इस गुफ्तगू का सबसे अहम हिस्सा है और ये वो मालूमात है जो हर किसी को नोट कर लेनी चाहिए। पहला नुक्ता तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप जिस मुल्क जा रहे हैं वहाँ का इमरजेंसी नंबर मालूम करें। ये एक बुनियादी सी बात लगती है, लेकिन सच पूछें तो हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। हम होटल की बुकिंग चेक करते हैं, मौसम का हाल देखते हैं, लेकिन ये नंबर महफूज नहीं करते। और इसमें एक और गहराई है। सिर्फ नंबर जानना काफ़ी नहीं, ये भी देखें कि क्या कोई यूनिवर्सल नंबर है, जैसे पूरे यूरोप में 112 काम करता है। अच्छा, 112? जी, अमेरिका में 911, बर्तानिया में 999। ये 2 मिनट की गूगल सर्च है जो किसी की जिंदगी बचा सकती है। सही। और दूसरा नुक्ता? मोटरवे के इमरजेंसी सिस्टम के बारे में जानना। बिल्कुल। वो कॉल बॉक्स कैसे काम करते हैं? क्या कोई खास हिदायत हैं? ये जानना ज़रूरी है। तीसरा नुक्ता इंश्योरेंस का है। हम सब ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन क्या हम कभी उसके कागजात पढ़ते हैं? शायद ही कोई पढ़ता हो। आपको मालूम होना चाहिए कि हंगामी सूरत हाल में आपकी इंश्योरेंस क्या कुछ कवर करती है और मदद हासिल करने का तरीका क्या है। क्या आपको पहले उन्हें फ़ोन करना है? क्या वो बराह रास्त अस्पताल को अदायगी करेंगे? ये सवालात सफ़र से पहले पूछे जाने चाहिए। यहाँ पर आपके ज़राए में बेल्जियम की एक मिसाल दी गई थी, जिसने मुझे वाकई चौंका दिया। वो क्या थी? जी, वो एक बेहतरीन मिसाल है जो दिखाती है कि तैयारी में बारीकी कितनी अहम है। बेल्जियम में अगर आप मोटरवे के ऊपर यानी ओवरपास से ब्रेकडाउन की सूरत में मदद के लिए कॉल करते हैं तो आपको 500 यूरो तक का बिल आ सकता है। 500 यूरो? जी, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाकर मोटरवे से नीचे उतरते हैं और फिर उसी सर्विस को कॉल करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस उसे कवर कर लेती है और आपको कोई अदायगी नहीं करनी पड़ती। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ चंद 100 फुट का फासला 500 यूरो बचा सकता है? ये तो नाकाबिले यकीन है। ऐसा क्यों है? जी, ये दरअसल दायरा इख्तियार का मामला है। मोटरवे के ऊपर एक मखसूस कंपनी का कंट्रोल होता है जिसके रेट ज़्यादा होते हैं, जबकि नीचे आम शहरी इलाकों के कावानीन लागू होते हैं। ये एक छोटी सी तफसील है, लेकिन ये जाहिर करती है तैयारी का मतलब सिर्फ मोटी मोटी बातें जानना नहीं, बल्कि मकामी निज़ाम की बारीकियों से वाकिफ होना भी है। ये तो वाकई एक गहरी बात है। अच्छा, एक और नुक्ता ज़बान का है। हंगामी सूरत हाल में अगर आप मकामी ज़ुबान नहीं बोल सकते तो क्या करें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपको पूरी ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ चंद कलीदी जुमले याद कर लें, जैसे इमरजेंसी, एम्बुलेंस चाहिए, या कोई बीमार है, डॉक्टर। अंग्रेजी में भी इमरजेंसी, वी नीड एम्बुलेंस, समवन इज सिक। जी, ये सादा जुमले आपकी बात पहुंचा सकते हैं। आजकल तो फ़ोन में ट्रांसलेशन ऐप्स भी मौजूद हैं जो ऐसे वक्त में बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। और आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ता, तरजीह। हंगामी सूरत हाल में पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? हमेशा हर हाल में
पहली तरजीह पेशावराना तिब्बी इमदाद होनी चाहिए। डॉक्टर, एम्बुलेंस, मकामी इमरजेंसी सर्विसेज। रिश्तेदारों को बाद में इत्तला दें। जी बिल्कुल, वो हजारों मील दूर बैठकर दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जबकि फौरी मदद सिर्फ मकामी टीम ही फराहम कर सकती है। पहले मदद बुलाएं, फिर इत्तला दें। इस तरतीब को हमेशा याद रखें। ये तमाम नुकात बहुत अहम है, और जब इन पर अमल किया जाता है तो नताइज कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसकी भी एक मिसाल आपके मवाद में मौजूद थी, वो जहाज वाला वाकया। जी, वो एक बेहतरीन तकाबली मिसाल है। हैम्बर्ग से इंग्लैंड जाते हुए जहाज में एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा। अमले ने फौरन अपने प्रोटोकॉल पर अमल किया। उन्होंने ऐलान किया कि क्या जहाज में कोई डॉक्टर मौजूद है? और खुशकिस्मती से एक डॉक्टर मौजूद था। जी, उसने फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। पायलट ने करीबी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त ली और जहाज के उतरने से पहले एम्बुलेंस रनवे पर तैयार खड़ी थी। और मुसाफिरों को अपनी नशिस्तों पर ही रहने को कहा गया ताकि मरीज को सबसे पहले बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, ये तैयारी, प्रोटोकॉल और फौरी अमल की एक शानदार मिसाल है। एक तरफ एक सान्या है जो मालूमात की कमी की वजह से पेश आया, और दूसरी तरफ एक जान है जो सही मालूमात और बरवक्त अमल की वजह से बच गई। दोनों वाकयात में फर्क सिर्फ तैयारी का था। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मोहम्मद इकबाल की कमी उनके खानदान के लिए हमेशा रहेगी, लेकिन हम अपनी गफलत और लापरवाही को कम करके मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के अलमनाक असरात को यकीनी तौर पर कम कर सकते हैं। सफ़र से पहले तैयारी करें, इमरजेंसी नंबर्स फ़ोन में महफूज करें, इंश्योरेंस की तफसीलात समझें, चंद ज़रूरी जुमले सीखें, और सबसे बढ़कर हंगामी सूरत हाल में घबराने के बजाय सबसे पहले पेशावराना मदद को कॉल करें। आपने बिल्कुल सही कहा, वक्त ज़ाया ना करें, एक एक सेकंड कीमती है। यहाँ एक आखिरी सोच काबिल गौर है। हम अपने सफ़र की मंसूबाबंदी पर हफ्तों बल्कि महीनों लगाते हैं। टिकट, होटल, कपड़े, घूमने की जगह, कौन से रेस्तोरां में खाना है, इन सब चीज़ों पर हम कितना वक्त और तवानाई खर्च करते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन क्या हम 5 मिनट भी इस एक फ़ोन नंबर को याद करने या इस एक जुमले को सीखने पर लगाते हैं जो किसी हंगामी सूरत हाल में हमारी या हमारे किसी अजीज की जान बचा सकता है? ये एक बहुत गहरा और चुभता हुआ सवाल है। शायद हमें सफ़र की तैयारी की अपनी तारीफ पर ही नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। तैयारी का मतलब सिर्फ तफरीह और आराम की मंसूबाबंदी नहीं, बल्कि हिफाजत की मंसूबाबंदी भी है। ये एक इजाफी काम नहीं, बल्कि सफ़र का सबसे लाजमी हिस्सा होना चाहिए। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद इकबाल के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके वालिदैन, बीवी और तमाम अजीज़ों को सब्र जमील दे और उनकी नन्ही बच्ची के मुस्तकबिल को रोशन बनाए। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और ऐसी नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन।